Good morning, class. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and studying very well and very proper manner at your home. So be positive and study hard. Prepare yourself accordingly to your board examination and maintain the revisions. Revisions are very important. The more and more you revise, the more you will be prepared. So we are doing the revisions. Be focused on your topics, be focused on your chapter. What are the chapters you have to discuss, what are the topics you have to study. Solve the sample papers more and more, and in the coming days also we are going to start this solving the sample paper also. Okay, so the topic which I am going to discuss with you, the intelligence. Okay, this I already taught you and the revisions are also done. But some of the things which I want to discuss with you regarding this one, intelligence. So basically there are so many definitions of intelligence which you have to learn and it is given in your book. But how to learn them, this I am going to explain you here. So the first definition which is given by the Oxford Dictionary, that intelligence is the power of perceiving, learning, understanding and knowing. So the first definition which is given by the Oxford Dictionary about the intelligence is defined as pluck. आप इसे pluck की तरह learn कर सकते हैं. You can see P for perceiving, L for learning, U for understanding and K for knowing. Means intelligence की आपके पास एक definition ready हो गई according to the Oxford Dictionary, and that is the definition is pluck. P for perceiving. इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस को आप क्या समझते हैं? इंटेलिजेंस एक पावर है, कितना क्विकली, हाउ क्विकली यू परसीव द थिंग्स, हाउ फास्ट यू लर्न द थिंग्स. It is a power of perceiving, it is a power of learning, it is a power of understanding and it is a power of knowing. So this is the meaning of intelligence. So this is the general meaning of intelligence, children. अगर आपको इन अ कॉमन डेफिनेशन भी देनी पड़े इंटेलिजेंस की, अगर आपको इफ एनीवन आस्क्ड टू यू और इफ यू हैव टू राइट इट इन अ 1 मार्क्स क्वेश्चन, सो यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन. Like if it is asked define intelligence, so you can without thinking any much, you can directly write down the Oxford Dictionary definition, that intelligence is the power of perceiving, learning, understanding and knowing. So keep it in mind, pluck. प्लग आप अपने माइंड में याद रखिए. ये एक तरह का मेमोरी इन्हांसिंग टेक्निक भी है जो मैं यूज कर रही हूँ. इसे फर्स्ट लेटर टेक्निक कहते हैं. मैंने सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को यूज किया है यहाँ, PLUK. तो जितना आप इन चीज़ों को यूज करते हो बेटा, वैसे ही आपके मेमोरी में चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होती हैं और आपकी मेमोरी इन्हांस होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द बिनेट एंड साइमन. बिनेट एंड साइमन का बहुत नाम है इंटेलिजेंस में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वॉज डन बाय द बिनेट एंड साइमन इन इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस जो आज हम लोग कई बार ये वर्ड सुनते हैं, IQ, ये टर्म हम लोग कॉमन है, सुनते हैं काफ़ी लोगों से, IQ तुम्हारी क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है. तो इस पे सबसे ज़्यादा बिनेट एंड साइमन जो थे उन्होंने वर्क किया. ठीक है, तो उनके नाम आप लोग नहीं भूलोगे. बिनेट एंड साइमन ने भी ये डेफिनेशन दी इंटेलिजेंस की, बहुत इजी डेफिनेशन थी वो. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वेल, जज वेल एंड रीजन वेल. उनकी डेफिनेशन को जर से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो जर वर्ड याद रखेंगे. J फॉर जज वेल, U फॉर अंडरस्टैंड वेल एंड R फॉर रीजन वेल. सो इंटेलिजेंस क्या है बच्चों? इट इज द एबिलिटी to judge well, understand well and reason well. So I hope this is clear to you. I think the two definition is very much clear to you all and you have learned these two definition with me in this classroom.
The two definition, the one is given by Oxford Dictionary. It is by the Oxford. Okay, and this is by the Binet. ये बिनेट की डेफिनेशन है और ये ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है. ओके, वेरी इजी टू लर्न. प्लग जर. इट इज फॉर दोज वन हु हैव डिफिकल्टी टू लर्न द होल सेंटेंस. अगर होल सेंटेंस आपको लर्न करने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप इन शॉर्ट टर्म द फर्स्ट लेटर टेक्निक का यूज कर सकते हैं ताकि वो चीजें आपके मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहे. So again, moving to the next definition of intelligence, I want to share with you what is intelligence. It is the power of perceiving, learning, understanding, knowing. Intelligence is the ability to judge well, understand well, and reason well. Okay, so two definition we have learned, children. Binet and Simon and Oxford. Now एक डेफिनेशन और है जो कि वेस्लर ने दी है. ठीक है, तो हम लोग वेस्लर की डेफिनेशन स्टडी करेंगे. वेस्लर इज द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट. WESCHLER, वेस्लर. ठीक है, वेस्लर ने भी डेफिनेशन दी रही है. वेस्लर की क्या डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट. तीन चीजें हैं. ठीक है, पहला है इन्होंने क्या कहा, इंटेलिजेंस क्या है, ये एक एग्रीगेट कैपेसिटी होता है इंडिविजुअल का टू एक्ट पर्पसफुली. वो जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल होते हैं वो ऐसे कुछ भी नहीं करते. उनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो पर्पसफुली एक्ट करते हैं, बिना कारण के ऐसे नहीं एक्ट करना. ओके, without any reason, without any purpose, they doesn't act. So they act purposefully. Second, they think rationally सोचते हैं. Okay, and deal effectively with their environment. So जो अपने environment से effectively deal करता है, rationally think करता है और ability to reason है, तो उन persons को that person be called as intelligent. So children, we are studying the different definitions of intelligence today. So we had deal with Oxford, Binet and Wessler. The last definition which is given in your book is of Sternberg, Robert Sternberg. उन्होंने definition ये दिया था कि intelligence क्या है. Intelligence not only adapt to the environment but also shape and modify it. उन्होंने ये कहा कि जो पर्सन इंटेलिजेंट होते हैं वो ना ही सिर्फ अपने इन्वायरमेंट से अडैप्ट करते हैं बट ऑल्सो उसको अकॉर्डिंगली शेप और मॉडिफाई भी करते हैं. सो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट इज द एबिलिटी नॉट ओनली टू एडजस्ट विद द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो शेप एंड मॉडिफाई. So children, we have done with the intelligence definition. Now moving toward the next thing. So we move to the next topic. Then we are studying about the intelligence. In that term, we had studied about different types of intelligence, different definitions of intelligence. The first one is given by Binet and Simon. The second one is given by Wessler, and third one is given by Robert and Sternberg. And the first is the Oxford Dictionary. So the different definition of the intelligence we have studied. Now children, I am going to teach you about the types of intelligence test. Intelligence test कितने तरीके के होते हैं. So first categorization is individual and group. Individual and group. Second is verbal, non-verbal and performance.
Third came the culture fair and culture bias. Okay, so these are some categorization of the intelligence test types. First one came the individual and group test. कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जो कि इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जिनको हम ग्रुप में एडमिनिस्टर करते हैं। इंडिविजुअल मीन्स 1-to-1 बेसिस, फेस टू फेस आप इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो। ग्रुप मीन्स आपने मोर देन वन इंडिविजुअल है, मोर देन वन पर्सन। नेक्स्ट इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। वर्बल टेस्ट जो होता है, यूजली नाम में दिया है वर्बल, तो लोग इसे यही सोचते हैं कि दैट इज ओनली रिलेटेड टू द ओरल, बट नो, वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूड बोथ ओरल एंड रिटन, ठीक है। ये ओरल और रिटन दोनों होता है। ओरल और रिटन ये दोनों होता है वर्बल टेस्ट, ओरल एंड रिटन बोथ। यानी हम लोग ओरली भी किसी के इंटेलिजेंस, सम टेस्ट आर कंडक्टेड ओरल एंड सम टेस्ट आर कंडक्टेड इन अ रिटन फॉर्म। कुछ रिटन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर्स होते हैं विच मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, सो दे आर वर्बल, दे आर नोन टू बी एज द वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल टेस्ट क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट में हम लोग पिक्चर्स का यूज करते हैं। वी यूज पिक्चर्स और एग्जाम्पल्स, ओके, इलस्ट्रेशंस रहते हैं, एग्जाम्पल्स रहते हैं, पिक्चर्स का यूज करते हैं नॉन वर्बल टेस्ट में। परफॉर्मेंस में क्या होता है? परफॉर्मेंस में हम लोग एक्ट करते हैं, कुछ किसी भी तरह का एक्ट होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस में एक्शंस होते हैं, ओके। सो वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस, अंडरस्टूड। द लास्ट वन इज कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस, ओके, दिस इज लास्ट वन। कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस जो होता है, कुछ इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं जो कल्चरली फेयर होते हैं। कहने के मतलब उसका आप एप्लीकेशन सभी कल्चर्स पे कर सकते हो, पर जो कुछ टेस्ट होते हैं वो कल्चरली बायस होते हैं, यानी आप उनका एप्लीकेशन सब पे नहीं कर सकते, वो लिमिटेड होते हैं, कुछ ही कल्चर्स के लिए ही बने होते हैं, तो दे आर नोन एज कल्चर बायस टेस्ट, ओके। So I hope it is very much clear to you all. Now children, we will study about how culture is related to the intelligence. कैसे culture intelligence से related है? So before moving to that topic, I want you to clear all these one. Performance test का एक एग्जाम्पल दिया गया है, कोहो-ब्लॉट डिजाइन टेस्ट। ये एक तरह का परफॉर्मेंस टेस्ट होता है जिसको परफॉर्म करके लोगों के आप इंटेलिजेंस को मेजर आप कर सकते हो, ओके। सो नॉन वर्बल में जैसे आरपीएम इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन वर्बल टेस्ट। आरपीएम, रैपिड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ओके, इनका यूज, ये भी एक तरह का नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें इनकम्प्लीट फिगर दिया रहता है जिसे पर्सन्स को कंप्लीट करना होता है, ओके। इसे एसपीएम भी कहते हैं, कई जगह इसे एसपीएम भी लिखा है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल।
So now we will move to the next one. What is the relationship of intelligence with the culture? इंटेलिजेंस एंड कल्चर क्या है? कल्चर की जब हम बात करते हैं तो हम लोग 2 टाइप्स ऑफ कल्चर यहाँ डिस्कस करते हैं. द 2 टाइप्स ऑफ कल्चर विच वी डिस्कस इज, वन इज इंडियन कल्चर एंड अनदर वन इज वेस्टर्न कल्चर. ये 2 तरीके के टाइप्स ऑफ कल्चर हम लोग डिस्कस करते हैं, इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर. ओके, इंडियन कल्चर इंटेलिजेंस को बहुत ही डिफरेंट वे में देखती है और वेस्टर्न कल्चर इंटेलिजेंस को बहुत ही डिफरेंट वे में देखती है. बोथ हैव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टू सी द इंटेलिजेंस. इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें तो इंडियन कल्चर में इंटेलिजेंस के लिए एक वर्ड दिया गया है, बुद्धि. बुद्धि इज नोन टू बी अ संस्कृत वर्ड. यहाँ पे आप 2 टर्म्स पढ़ेंगे बच्चों. द 2 टर्म्स आर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटीग्रल इंटेलिजेंस. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस विच वी हैव डिस्कस्ड. सो वेस्टर्न इंटेलिजेंस में, वेस्टर्न कल्चर में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस आता है. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस. इंडियन कल्चर में इंटीग्रल आता है. याद रखने के लिए अगर भूल रहे हो तो आई को आई से कोरिलेट कर सकते हो. आई फॉर इंडियन कल्चर एंड आई फॉर इंटीग्रल इंटेलिजेंस. आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि इंडियन कल्चर में इंटीग्रल इंटेलिजेंस आता है, या इंडियन कल्चर जो है वो इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात करता है. वेस्टर्न कल्चर जो है वो टेक्नोलॉजिकल की बात करता है. इंटीग्रल नाम से पता चल रहा है इंटीग्रेटेड, सब चीजें मिली हुई हैं. और यहाँ पे एक ही चीज को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वो है टेक्नोलॉजी. ये आप सभी को भी मालूम होगा और यू ऑल आर वेरी मच अवेयर दैट वेस्टर्न कल्चर्स आर नोन फॉर देयर टेक्नोलॉजी, आर नोन फॉर देयर एडवांसमेंट, आर नोन फॉर देयर एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज. सो उनका पूरी तरह से जो इंटेलिजेंस होता है वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होता है. हमारे इंडिया में सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही फोकस नहीं करते, वी इंटीग्रेट सो मेनी एस्पेक्ट्स. इट ऑल्सो टॉक अबाउट सोशल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरल एस्पेक्ट्स. सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. तो हम लोग कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, एबिलिटी. तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. इंडियन वेस्टर्न कल्चर अगर कोई एक कॉम्पिटेंस हमने जिस पे वो ज़्यादा फोकस करता है, वेस्टर्न कल्चर अगर किसी कॉम्पिटेंस पे ज़्यादा फोकस करता है तो वो है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. ये एक ही एबिलिटी, एक ही एस्पेक्ट, एक ही कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता है. लेट मी राइट इट अगेन एज इट इज नॉट क्लियर टू यू ऑल. Sorry. Okay. So I hope it is clear to you all. Cognitive. So ये एक ही चीज पे फोकस करता है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस. कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस यानी कॉग्निटिव पैरामीटर्स, तो ये सिर्फ इन्हीं चीजों पे जाता है. कॉग्निटिव पे फोकस करने का मतलब वो सिर्फ फोकस उनका किस पे है, माइंड. माइंड पे फोकस है, शार्प होना चाहिए माइंड. ओके. एंड कॉग्निशन पे फोकस हो रहा है पूरी तरह से, यानी पर्सन के थॉट्स पे फोकस हो रहा है. इमोशन को इन लोग अलग हटा दे रहे हैं. इमोशन से कोई मतलब नहीं, सोशल एस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं, कम्युनिकेशन से उतना कोई मतलब नहीं. द मोर फोकस इज ऑन द टेक्नोलॉजी, द मोर फोकस इज ऑन द कॉग्निशन विच इज नोन फॉर थिंकिंग, रिमेंबरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सो मेनी
mental activities and mental processes. तो उनका जो है फोकस सिर्फ इसी चीज़ों पे है, पर जस्ट अपोजिट हमारे इंडिया में इंटीग्रल की बात होती है तो ये सिर्फ एक ही कॉम्पिटेंस को नहीं लेता, वे बहुत सारे कॉम्पिटेंस को लेता है। कौन कौन से कॉम्पिटेंस को ये लेता है? ये कॉग्निटिव की ही सिर्फ बात नहीं करता, ये सोशल की भी बात करता है, इमोशनल की भी बात करता है और एंटरप्रेन्योर की भी बात करता है। ठीक है, तो इतने सारे कॉम्पिटेंस की ये बात करता है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, सोशल, इमोशनल एंड एंटरप्रेन्योर। इसीलिए इस इंटेलिजेंस को इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहा। ये इंडियन कल्चर में ऐसा है। ठीक है, ये हम लोग इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा we have discussed two types of culture, Indian and Western. In Indian, we focus on cognitive competence, social, emotional and entrepreneurial. Whereas in Western, we only focus on cognitive competence. Indian, we talk about integral intelligence. Whereas in Western, we focus on technological intelligence. So this is the basic difference between the two culture and their concept of intelligence. Now one more term which is related to the intelligence, which is very much prominent, is emotional intelligence. है क्या ये? What is emotional intelligence? इमोशनल इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं हमारे इंडियन एस्पेक्ट का ही फोकस है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस ये भी एक एस्पेक्ट है, इसके लिए पॉइंट होता है एक फ्रेज, दैट इज EQ। EQ is very much like important for any person to be success in their life. They should be emotionally intelligent. Emotionally intelligent person बहुत succeed करते हैं अपने लाइफ में। See, intelligent होना ही enough नहीं होता, you should understand the feelings, the thoughts, the opinion and the perspectives of other one in order to be deal with you in any situation. Play an important role. So if we come to the part of the definition of emotional intelligence, so it is the ability to understand and manage and realize and analyze the emotions of oneself as well as other. That is emotional intelligence. That is emotional intelligence. Children, we are studying about the emotional intelligence. So I discussed with you that emotional intelligence is the ability to understand emotion and to manage emotion and to analyze emotion, not only your but also other. There are some characteristics of an emotionally intelligent person. What are the characteristics? So let us discuss about their characteristics. The emotionally intelligent person are very sensitive toward their own feeling as well as toward other.
तो पहला तो वो सेंसिटिव होते हैं, सेकेंड वो परसीवर भी होते हैं, like they are able to perceive and understand one's own as well as others' emotion. So emotionally intelligent person are very sensitive as well as are a very good perceiver. They are also very good manager. They manage also emotions in oneself as well as in others. There is one definition of the emotional intelligence which is given by Peter Salovey and Mayer, and it is a very famous definition also. So let us discuss that definition. Definition by Peter Salovey and Mayer. Definition by Peter Salovey and Mayer. This is a definition which is given by the Peter Salovey and Mayer, and it is a very famous definition in terms of emotional intelligence. So what is the definition? He has given a definition that emotional intelligence is the ability to understand emotion. This is a definition, children. It's not given in your book also. So I think you better write down it also. Emotional intelligence is the ability to understand one's emotion, as well as others, so it is the ability to understand one's emotion as well as other emotions and to discriminate among them and to use one's information. Emotional intelligence is the ability to understand one's emotion as well as other emotion and to discriminate among them and to use the information to guide one's action. Okay, so this is the definition which is given by the Peter Salovey and Mayer. I want you all to write it down properly in your copy. It is very much beneficial for you all. I hope just you all have written this one. I will give you some minutes to write it down and I will dictate it also. Good morning everyone.